সবাই থ্যাংক ইউ সো মাচ। পারপাস দুটো, যে পারপাসে আমাদের আশা, প্লিজ মাথাটা খুলে দিচ্ছে। আমার এদিকে তো নেই, অসুবিধা হবে না। প্রথমে তো অন বিহাফ অফ মণিপাল মুকুন্দপুর আপনাদের প্রত্যেককেই অজস্র ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ বিকজ ইউ আর অলওয়েজ অল টাইম আসতো আপনার অন টাইম। আজ আমরা এখানে কেন, এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে 29th of October we celebrate as a World Stroke Day। সেতে আমাদের মণিপাল মুকুন্দপুর ইউনিটের থেকে আমরা যে ব্যাপারে আজ এখানে এক হয়েছে, আমাদের মাঝে হচ্ছে ডক্টর কৃষ্ণেন্দু প্রধান, যে এই যে প্রেজেন্ট টাইমের মধ্যে একটা নিউরো ডিজিজের একটা চরম আমরা স্পাইক বা সার্চ লক্ষ্য করি। আগে যেরকম ধরনের লোক নিউরো ডিজিজ নিয়ে আসছে সেই তুলনায় অনেক বেশি আসছে। তারা কেন আসছে, এবং এই স্ট্রোক, আজকে স্ট্রোক একটা খুব মারাত্মক বড় ইম্পর্টেন্ট রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কার্ডিয়াকের পরে নাম্বার অফ নিউরো পেশেন্ট সব থেকে হাইয়েস্ট আমাদের ভারতবর্ষে। কেন স্ট্রোক হলে আমরা এক্স্যাক্টলি কি করব, আমরা অনেক ক্ষেত্রে বুঝতে পারি না স্ট্রোক হয়েছে কিনা। আমরা সবাই কি করে বুঝবো যে স্ট্রোক কিভাবে, স্ট্রোকের সিমটমস এবং তার ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয়। স্ট্রোক কেয়ার ইউনিট নিয়ে আমরা যে কাজ করছি, সেক্ষেত্রে বর্তমানে আমরা কি করতে পারি সেই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা আজকে এখানে মোরালে সব থেকে আগে আমি একটা জিনিসকে হাইলাইট করব, যে কোনো কারণ হোয়াট এভার দ্য রিজন, যে কোনো কারণের জন্য বর্ধমান থেকে আমরা অনেক নিউরো পেশেন্ট পাই, স্ট্রোক তার মধ্যে একটা। থ্যাংক ইউ সো মাচ যে এই পেশেন্টটাকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং তাদের আমরা চিকিৎসা করছি। বর্তমানের লোকেদের আমাদের প্রতি একটা খুব ভালো আস্থা এখন অব্দি আছে, আমরা সেটা রাখতে পেরেছি। বর্ধমান পার্টিকুলারলি এই কারণে বললাম, কারণ আমরা যে পেশেন্টের যে ডেটা পাই প্রত্যেক হসপিটালের ক্ষেত্রে দেখি বর্তমানে একটা পেশেন্টের নিউরো ডিজিজের ক্ষেত্রে আমরা অবজার্ভ করি। তো আপনাদের প্রথম কোয়েশ্চেন স্যার যদি থাকে প্লিজ আপনারা করতে পারেন রিগার্ডিং स्ट्रोक। नमस्ते, एक्चुअली मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं आई एम नॉट वेल वर्स्ड इन बंगाली। मेरा परिचय है कि मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार प्रधान, आई एम अ न्यूरो सर्जन। बेसिकली आई एम फ्रॉम सिक्किम बट सेटल्ड इन बंगाल फॉर द लास्ट 15 years। और मेरा एजुकेशन हुआ कालिम्पोंग में। आई वाज इन बोर्डिंग स्कूल फॉर द लास्ट नर्सरी टू 12। Thereafter I did my MCH neurosurgery in the Institute of National Importance that's called Sri Chitra Institute, that's in Trivandrum। एंड उसके बाद मैं कैलकट में अभी लास्ट 15 years से काम कर रहा हूँ। देखिए ये मणिपाल से हम लोग जुड़े हुए लास्ट 6 months हो गए। इससे पहले हम लोग आमरी में काम कर रहे थे और साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस कैलकट में मैं लास्ट 10 years से काम कर रहा हूँ। देखिए अब न्यूरो साइंस का एक ओवरव्यू पहले देना चाहता हूँ। वन इज द स्ट्रोक, व्हाट वी ऑल नो। स्ट्रोक कैन बी ऑफ 2 types। वन इज द हेमोरेजिक स्ट्रोक जिसमें ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग होता है, साथ में वो उसका प्रेजेंटेशन एक ही ब्लीड हो सकता है, अलग टाइप का हो सकता है। दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रोक, देखो सोसाइटी में जो हम जानते हैं कि स्ट्रोक में एक गोल्डन आवर होता है। स्ट्रोक को डिटेक्ट करने के लिए एक समय सीमित होता है जिसके अंदर हम लोग यदि ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका मॉर्बिडिटी माने उसका जो नुकसान कम हो जाता है, या तो मॉर्टेलिटी उसका डेथ कम हो जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है। Stroke a golden period is 60 minutes, 1 hour. If a person comes within 60 minutes or 1 hour, the chances of recovery is very, very high. The
the patient can go back to his normal activities, almost normal activities. But this golden period has been extended up to 4 to 4.5 hours. तो कोई भी लक्षण मिले स्ट्रोक का और आप 4.5 आवर्स के अंदर में आएंगे, हो सकता है एक सिंपल इंजेक्शन से हम ट्रीट कर सकते हैं। और यदि आप स्पेशलिस्ट स्ट्रोक सेंटर में जाएंगे तो साथ में इंजेक्शन के साथ हम लोग अपने लैब में ले जाएंगे, वहाँ पे जाके हम लोग क्लॉट निकाल सकते हैं या तो जो ब्लॉकेज है वो निकाल सकते हैं विद मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। सो स्ट्रोक इज नॉट सो सिंपल, इट्स नॉट ओनली इंजेक्शन, इट्स एमैल्गमेशन। It needs a teamwork. मैं अकेले आया हूँ, it's very injustice to the whole department of stroke. I'm a neurosurgeon, but there is a specialized जो stroke team का एक leader है जो आज आने वाला था, डॉक्टर अफरीदीन चैटर्जी नहीं आ पाए, किसी कारण से नहीं आ पाए। He is a leader in Manipal Group of Hospitals in Calcutta. तो एक टीम में एक न्यूरोलॉजिस्ट होता है who is specially trained in stroke with who does the intervention, जो डॉक्टर डाल के हम प्लॉट में निकाल सकते हैं। साथ में न्यूरोसर्जन जहाँ पे ब्रेन के अंदर हम लोग ऑपरेशन करना पड़ सकता है एज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। अब देखिए, व्हाट आर द साइंस ऑफ स्ट्रोक? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हैज टू बी कन्वेड टू द कम्युनिटी एट लार्ज। द साइंस ऑफ आजकल जो एक एक्रोनिम बना हुआ है, दैट्स कॉल्ड बी फास्ट, BEFAST। बी इज बैलेंस। एक कोई भी मरीज suddenly loses his balance, चलने में दिक्कत हो रही है, that's called balance, imbalance हो रहा है, that means कुछ गड़बड़ है, या तो ब्रेन में हो सकता है, स्पाइन में हो सकता है। So it's the best judge will be the doctor. You have to go to the nearest hospital. आप सबसे नजदीक अस्पताल में जाइए, especially if there is a neuro trained doctor or a neuro department. Second is E, eye signs. Suddenly अचानक किसी को दिखना कम हो गया, धुंधलापन हो गई, या एक आंख से दिखना बंद हो गया, या तो डबल विजन दिख रहा है, तो वो रेड हेयरिंग साइन है, उसमें तुरंत हॉस्पिटल जाना है। BEF फास्ट, फेस, F मतलब फेस। यदि मुंह का टेढ़ापन, बोलते बोलते टेढ़ापन आने लग गए, या देयर इज ड्रूपिंग ऑफ द वन साइड ऑफ द फेस, सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब बात होने लग गए, दैट मींस वो कुछ गड़बड़ है, ब्रेन में कुछ स्ट्रोक हो रहा है। दैट्स फेस, फेशियल एसिमेट्री और ड्रूपिंग। A is FBEFA, A is arm। किसी को चलते चलते या अचानक हाथ उठाने में तकलीफ हो रहा है, जो हाथ ऐसे उठा पा रहा है तो सडनली बहुत भारीपन हो रहा है, दैट मींस वो पैरालिसिस का लक्षण है, इनिशियल लक्षण। तो A मतलब आर्म, S मतलब स्पीच, है ना, एसिमेट्री भी होगा, एसिमेट्री बोलना भी कम हो जाए, मतलब दिक्कत हो सकती है, या तो फेस ड्रूपिंग हो सकता है। तो ऐसे स्पीच में जैसे मैंने समझाया, और T इज द टाइम व्हाट आई मेंशन इज द गोल्डन पीरियड। हो सके तो 60 मिनट्स में, 1 घंटे के अंदर जाना है, या तो 4.5 आवर्स के अंदर जाना ही है, यदि आपको न्यूरॉन्स को बचाना है। एक स्ट्रोक में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स नुकसान हो सकता है। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द टेरिटरी। सब स्ट्रोक एक समान नहीं होता, सब स्ट्रोक होपलेस नहीं होता। So my advice to the community at large through your medium is, please identify the signs of stroke early. Go to the nearest medical center, preferably a neuro center, जहाँ पे सब facility हो। उसके बाद according to the primary treatment, higher centers में refer हो सकता है, but please go to the nearest hospital as soon as possible. So ये तो stroke था। आज हम लोग डेफिनेटली अब स्ट्रोक पे कंसंट्रेट करेंगे, बट न्यूरोसाइंस इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। एक तो स्ट्रोक हुआ, अनदर इज न्यूरो ऑन्कोलॉजी हुआ, एपिलेप्सी हुआ, मूवमेंट डिसऑर्डर हुआ जिसमें चलने में दिक्कत हो रही है, और लास्ट इज द न्यूरोस्पाइन सब स्पेशलिटी। सो न्यूरोसाइंस इज वेरी लार्ज। टुडे विल टॉक ओनली अबाउट स्ट्रोक। Sir, the point is that when we are saying कि अभी ये स्ट्रोक का एज ग्रुप क्या है, because आपकी क्लिनिक में काफी सारे पेशेंट रहते हैं which is young, someone is old, why the young girls getting affected? देखिए, पहले का धारणा यह था कि स्ट्रोक सिर्फ ओल्ड एज में होता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ब्लॉकेज होता है, या ब्लड प्रेशर हाई कारण से स्ट्रोक होता है, ब्लीडिंग होता है। अभी ऐसा नहीं है। देयर इज अ बिग एंजाइटी कॉल्ड यंग ऑनसेट स्ट्रोक, जो टीनेज से लेके राइट अप टू 50 इयर्स ये स्ट्रोक बहुत ही कॉमन हो गया बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल चेंजेस, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, जो सबसे हम लोग अपने जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, वी आर एक्सपोज टू अल्कोहल,
as well as other substances which are for use. So it's very common. But always remember, stroke starts with genes, genetic. All patients, all people who are smoking in the society do not have stroke. There must be a genetic predisposition. तो जीन्स किसी का कमजोर हो जाता है किसी कारण से या अपने बनावटी ब्लड वेसल्स का अलग ही रहता है और साथ ही में जब एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस लाइक स्मोकिंग अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज करते हैं और साथ में हम लोग डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करते इससे बहुत कॉमन हो जाता है एज वी सी आजकल बहुत ही कॉमन सडन डेथ हो रहा है इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 50 years दिस कॉल्ड यंग ऑनसेट स्ट्रोक इसीलिए इसको बचाने के लिए regular treatment is very important. See, after the age of 35 years, yearly checkup of all the blood parameters as well as the vitals is very important by a physician. And जिसके घर में stroke का history है, उनमें तो और सतर्क होना चाहिए और जैसे हमने बताया कि अपने physician के संपर्क में हमेशा yearly treatment करना चाहिए. सर मानिए कि एक कोई हम लोग का परिचित नहीं है और वो अचानक हमारे सामने कोई स्ट्रोक मरीज हो गया है तो फिर तुरंत क्या करना चाहिए? देखिए जिस मैंने बोला कि सबसे पहले तो आपको नजदीक अस्पताल में लेके जाना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते. मानिए कि वो नजदीक नहीं है तब क्या करना है? ये फॉर्चुनेटली इंडिया हम लोग को आजकल हर हाईवे से लेके हर गली में हॉस्पिटल बना हुआ है एंड मोस्ट ऑफ द फिजिशियंस आर ट्रेन्ड फॉर द प्राइमरी ट्रीटमेंट एज जिसमें हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं दैट्स कॉल्ड थ्रोम्बोलाइसिस इंट्रावेनस जैसे हम लोग सलाइन लगाते हैं वहीं पे उसी लाइन से इंजेक्शन लगा सकते हैं थ्रोम्बोलाइसिस करते और साथ में थ्रोम्बोलाइसिस के साथ में यदि उन लोगों का फैसिलिटी नहीं है तो उसी इंजेक्शन के साथ हम लोग एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं दैट इज द प्रोटोकॉल. तो हमारे पास टाइम है करके हाँ टाइम मिलेगा तो टाइम मिलेगा so you can buy time you can extend the golden period. डैमेज का डायरेक्ट तो अपनी कंट्रोल थोड़ा दिखा सर पॉइंट इज कमिंग दिस साइड ऑफ द टेबल एंड दिस साइड ऑफ द टेबल एक चीज हम सब में कॉमन है दैट इज स्ट्रेस. व्हाट इज द रोल ऑफ स्ट्रेस इन स्ट्रोक? स्ट्रेस का क्या रोल है? Again, मैंने जिस बोला कि कारण नहीं हो सकता. Stroke with many other factors. Stress is definitely one big causative factor. We are most of the आजकल स्ट्रेस के साथ डिप्रेशन हो जाता है सोसाइटी में. हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते साथ में भी उस स्ट्रेस को डिप्रेशन कम करने के लिए भी कंज्यूम अदर सब्सटेंसेस व्हिच आर हार्मफुल टू द बॉडी. दिस ऑल एड अप टू द स्ट्रोक. और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस योगा which is promoted by the Prime Minister of India. It's very important actually. ये इसको हम लोग environmental modification बोलते हैं, so that we create a favorable environment for healthy mental health. सर माना जाता है कि मतलब ये पहले से कहा जाता है कि अगर स्ट्रोक हो और खून निकल जाए किसी भी ऑर्गन से तो वो पेशेंट का बचना मुमकिन है. तो ये तो अगर तुरंत देखा जाए कि ये भी जानते हैं हम लोग कि अगर किसी मरीज को स्ट्रोक हो गया और आपको पता है तो किसी भी उंगली काट दे के कुछ मतलब सुई से खून निकाल दे तो ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रोक माने सिर्फ इंजेक्शन से ठीक करना नहीं है. स्ट्रोक जैसे मैंने बोला कि एक तो ब्लॉकेज वाला स्ट्रोक एक ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक. आप जिस पेशेंट को स्ट्रोक हुआ रास्ते में आप ये की भिन्नता नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि उसको इस्केमिक स्ट्रोक हुआ या ब्लॉकेज हुआ, ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक हुआ. इसलिए सबसे पहले सीटी स्कैन तुरंत किया जाता है. जैसे पेशेंट आता है विदिन 1 मिनट एग्जामिन करते हैं और हम लोग सीटी स्कैन के लिए लेके जाते हैं और सीटी स्कैन की भिन्नता करते हैं कि ये स्ट्रोक वाला ब्लीडिंग वाला है या ब्लॉकेज वाला. ब्लॉकेज वाला है तो तुरंत हम लोग इंजेक्शन जैसे मैंने बोला आईवी थ्रोम्बोलाइसिस देना शुरू कर देंगे. ब्लीडिंग वाला है तो सीधे हम लोग बीपी कंट्रोल करना शुरू कर देंगे. बीपी हाई क्योंकि रिफ्लेक्सली बीपी हाई हो जाता है और ब्लीडिंग होते रहते हैं. ब्लीडिंग छोटा है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जिसको एंटी इरिमा मेजर्स बोलते हैं, एंटी एपिलेप्टिक मेजर्स, जिसकी एनर्जी ना हो उसके लिए मेडिसिन देना शुरू करेंगे और ब्रेन का प्रेशर कम करने की मेडिसिन शुरू करना पड़ेगा. और यदि ब्रेन में बहुत ही प्रेशर है, लाइफ को डेंजरस है तो तुरंत ऑपरेशन करना. ये हिमोरेजिक स्ट्रोक हुआ. इसमें आजकल इतना हम लोग का एडवांसेस है कि जो ब्लीडिंग हुआ है उसमें हम लोग मिनिमल इन्वेजिव एकदम माइक्रो सर्जरी या एंडोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है. एंड दीज आर लाइफ सेविंग. और अब ये ब्लॉकेज वाले स्ट्रोक में जैसे मैंने बोला प्रोटोकॉल इज यू स्टार्ट विद द इंजेक्शन, सीटी स्कैन करिए, इंजेक्शन स्टार्ट करिए. अपने पास फैसिलिटी है तो वहीं पे जाके सीधा कैथ लैब में ले जाके क्लॉट को निकालिए वहाँ से तो जो ब्रेन को बचा सकते हैं. नहीं तो फिर आपको रेफर करना ही पड़ेगा. जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है
हाई नहीं होता है उसका स्ट्रोक होता है सकता है। हो सकता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, स्ट्रोक से ब्लड प्रेशर हाई से नहीं होगा, जेनेटिक में प्रीडिस्पोजिशन विद अदर डायबिटीज विद अदर वैस्कुलर एनोमैलीज बोलते हैं, जो ब्लड वेसल्स का इनहेरेंटली बीमारी रहते हैं, उनमें भी ब्लड स्ट्रोक हो सकता है। सर आप स्ट्रोक को छोड़ के भी, आई मीन अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रोक थिंग, यू सी लॉट ऑफ पेशेंट्स इन स्पाइन, आप काफी सारे स्पाइन के देखते हैं, यू डू तो स्पाइन सर्जरी, व्हाई सो मच पेशेंट इन आवर स्पाइन सर्जरी रिक्वायर्ड? लोगों को स्पाइन में ठीक पड़ रहा है। ठीक है, स्पाइन तो ऐसा है कि सभी की इस रूम में सभी को कुछ ना कुछ स्पाइन का प्रॉब्लम तो स्पॉन्डिलाइसिस होते ही है। अगेन टू प्रिवेंट ऑल दिस, सबसे पहले तो हम लोग को वी हैव टू लीड अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द चाइल्डहुड itself। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी प्रिवेंट करना पड़ेगा, और वी शुड बी वेरी एक्टिव विद एक्सरसाइज। वी शुड गिव एटलीस्ट हाफ एन आवर 30 मिनट्स पर डे शरीर की एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज मतलब क्या होता है? सभी ग्रुप ऑफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। एक्सरसाइज का मतलब मोटापन कम करना नहीं है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। एक तो स्केलेटन होता है ना, स्पाइन होता है, उसको सपोर्ट करने वाला मसल्स ही रहता है। मसल्स यदि वीक हो गए या उसमें फैट जम गए, एक्सरसाइज नहीं करने से मसल्स के अंदर फैट जम जाता है, इसलिए कमजोर होना शुरू होता है। तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज ही है। अब देखिए, हम लोग कभी क्या प्रैक्टिस में, न्यूरो साइंस की प्रैक्टिस में अराउंड 50% ऑफ द सर्जरीज आर ऑफ द स्पाइन। इतना कॉमन है। और स्पाइन का प्रॉब्लम छोटा हो सकता है, जैसे माइल्ड स्पॉन्डिलाइसिस बोलते हैं, या तो बड़ा हो सकता है जिसमें पैरालिसिस का लक्षण होता है। तो अगेन बेस्ट टू गो टू अ डॉक्टर स्पेशलिस्ट टू आइडेंटिफाई कि आप किस स्टेज में हैं, एंड ही विल डिटरमिन कि आपको क्या करना है। एक्सरसाइज करके ठीक करना है, या तो कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लाना है, आपको ओबेसिटी कम करना है, या तो ऑपरेशन करना है। अगेन ये सब हम लोग कर रहे हैं पैरालिसिस बचाने के लिए, लिम्फ डेफिसिट मतलब कमजोरी से बचने के लिए। आप नेग्लेक्ट करेंगे तो आपका पूरा पैरालाइज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द इंजरी। आपका ब्लैडर बाउल मतलब आपका टट्टी पेशाब में तकलीफ हो सकता है, और ये लाइफस्टाइल का स्टिग्मा है। एक बार हो गए तो पूरा रिकवरी नहीं होता है। हम लोग का मेन उद्देश्य रहता है कि पहले ही कंट्रोल करें, पहले उसको सीमित रखें। स्पॉन्डिलाइटिस है तो न्यूरो सर्जन के पास जाना पड़ेगा, न्यूरोलॉजिस्ट इसके पास जाना। देखिए, आप न्यूरोफिजिशियन इज अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसर्जन के पास जा सकते हैं। अकॉर्डिंगली दे विल जो स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास आइए, एग्जामिन करना जरूरी है, और हो सके तो इन्वेस्टिगेशन लाइक एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई करना पड़ेगा। That means you are saying that spondylitis is also a common cause for the stroke. Spondylitis? No, I don't say that. Again, depending on the kind of a spondylitis, there are many degenerative spine, there are many rheumatological problem, as well as some kind of genetic problem in which there is hypertrophy of the bones, in which they gradually compress the blood vessels in the neck and all. That can cause stroke. Okay. मुनिसिपल हॉस्पिटल में जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम चल रहा है स्वास्थ्य साथी, वो एप्लीकेबल है? यस, वो एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेबल है। हमारे पास जितने भी पेशेंट को इमरजेंसी पे आते हैं, वी ट्रीट देम। सर क्वेश्चन है, कौन कौन सा ऑर्गन को इफेक्ट करता है ये स्ट्रोक, एक नंबर, और नंबर 2 है प्लाक और जो अटैक है, दोनों में अंदर क्या है? देखिए, स्ट्रोक आजकल तो ब्रेन स्ट्रोक होता है, हार्ट स्ट्रोक होता है, किडनी स्ट्रोक, सबका सभी ऑर्गन्स का स्ट्रोक है। इवन लिवर का भी ब्लड सप्लाई बंद हो सकता है, उसको लिवर स्ट्रोक भी बोलते हैं। हम लोग अभी तो ब्रेन स्ट्रोक की बात करें, पर ब्रेन स्ट्रोक हो गए तो मेंटली आपका जो सेंसोरियम है आपको डाउन हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप हार्ट में असर आने लगता है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ द स्ट्रोक। हार्ट का जो ऑटोमेटिक डिस्फंक्शन बोलते हैं, जो करंट आना है ब्रेन से, वो सिग्नल कम होता है। फिर लंग्स कम हो जाता है, फिर एस्पिरेट, जब ड्राउजी होने लगता है तो फिर जो हम लोग का जो सलाइवा में बैक्टीरिया रहता है वो लंग्स में चला जाता है, निमोनिया होने लगता है, तो मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जाता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा नहीं कि एक ऑर्गन को एक अलग से देखे, यू हैव टू लुक एट द पेशेंट इन टोटलिटी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लाक एंड जो ब्लॉक और प्लाक में फर्क क्या है? ब्लॉक एंड प्लाक में देखिए स्ट्रोक अगेन पॉजिटिव ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक, जो ब्लॉकेज वाला स्ट्रोक है अब ये छोड़ देते हैं, हेमोरेजिक वाला स्ट्रोक अभी छोड़ देते हैं। ब्लॉकेज वाला स्ट्रोक कैसे होता है? हार्ट से शुरू होता है। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ टोज, हम लोग को लेग से शुरू होता है। सपोज पेशेंट बेड रिडन है,
एक महीने तो बेड क्या दो एक हफ्ते तक आईसीयू में पड़ा हुआ है या घर में पैरालाइज होकर पड़ा हुआ है, तो हम लोग को लेग के बड़े बड़े वेन्स में ब्लड जम सकता है, दैट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। वो सडनली आप मूवमेंट करेंगे, एक्सरसाइज मालिश वालिश करेंगे, वो डिस्लॉज होके सीधा हार्ट पे जाके, हार्ट से होके फिर ब्रेन के जो कैरेट पे जाके ब्लॉक हो सकता है। सो स्ट्रोक पैर से शुरू हो सकता है। सेकंड इज हार्ट। हार्ट इज द वेरी 50% ऑफ कॉजेज फॉर इस्केमिक स्ट्रोक इज फ्रॉम द हार्ट। हार्ट में क्या होता है कि एज के साथ या किसी का रिदम का बीमारी है तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिलिटी अच्छा नहीं रहता, वहाँ पे छोटे छोटे माइक्रो एम्बुलाई फॉर्म होता है, छोटे छोटे क्लॉट्स फॉर्म होता है हार्ट के अंदर, चैम्बर्स के लिए 4 चैम्बर्स होते हैं उसमें, फिर वो अचानक डिस्लॉज होके ब्रेन में चले जाता है। सो दैट्स कॉल्ड कार्डियो थ्रोम्बो एम्बोलिक स्ट्रोक। फिर जैसे हार्ट से निकलते हैं बड़े बड़े ब्लड वेसल्स, वहाँ पे प्लाक हो सकता है, जैसे आपने बोला, जैसे जिसका यदि कोलेस्ट्रॉल का बीमारी है, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है या जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे जाके धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और ओवर टाइम स्टीनोसिस हो जाता है, और स्टीनोसिस होते होते अचानक ब्लॉक हो जाता है, फिर ब्लॉकेज हो गया तो फिर ब्लड वेसल्स नहीं जा सकते। तो इसलिए जब इवैल्यूएशन करेंगे हम लोग स्ट्रोक का, इट शुड बी फ्रॉम द टो टू द हेड एवरीथिंग। और एक प्रैक्टिस है, कॉमन प्रैक्टिस है, सॉर्बिट्रेट, क्या No. लेना सही है? No, sorbitrate is only for the heart dilatation. It is only for the cardiac. Cardiac, it's not for the brain. सर जस्ट मैं स्ट्रोक को लेके भी आ रहा हूँ कि यू डू लॉट ऑफ स्पाइन सर्जरी। व्हाट इज सक्सेस ऑफ स्पाइन सर्जरी अगर अर्ली डिटेक्शन हो गया तो? स्पाइन में क्या है सर? See, spine, we are not God. We cannot cure spinal conditions. We can control it. We can help the patient to cope with the condition. यदि सर्जरी, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, हम सर्जरी करेंगे तो I can assure you 80% of the relief, not 100%. The rest 20% should be a mind game. किसी का मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा उन लोगों को एडजस्ट करने के लिए, साथ में एक्सरसाइज करना पड़ेगा एंड डूज एंड डोंट्स, जैसे भारी सामान अचानक नहीं उठाना, कैसे बैठना, कैसे उठना है, कैसे अपनी डेली एक्टिविटीज करना, ये इंपॉर्टेंट है। सो स्पाइनल पैथोलॉजी इज नॉट क्यूरेबल, इट्स कंट्रोलेबल। আচ্ছা, আপনি যেহেতু কলকাতায় রয়েছেন, এই রাজ্যে চিকিৎসা করছেন, কত মানে সংখ্যক রোগী পার মান্থ বা পার ইয়ার, মানে এই ধরনের অর্থাৎ নিউরোর ক্ষেত্রেই বলুন বা হার্টের ক্ষেত্রেই বলুন, স্ট্রোকের ক্ষেত্রেই বলুন, কি ধরনের বা কত সংখ্যক রোগীকে আপনারা পাচ্ছেন, মানে অ্যাভারেজ? From this figure, No, from মানে গোটা আমার রাজ্যের যদি বলি, রাজ্যে अच्छा as a whole sir, how many patients do you see? As a ক্যালকাটা, আপনি কলকাতা বলতে সামগ্রিক, আমি আমার একদম রাজ্যের কথা বলছি। স্টেটের কথা বলা দেখুন স্টেটের কথা বলতে গেলে যদি আপনি জাস্ট থিওরিটিক্যালি বলেন যে ডায়াবেটিস রোগ যে রয়েছে সেটা এই মুহূর্তে 10 জনকে যদি আপনি স্টাডি করেন 3 জনকার ডায়াবেটিস, রিলেটেড টু হার্ট ডিজিজ 10 জনকার 5 জনের মধ্যে, স্ট্রোক সেখানে ধরুন আপনি যদি 10 জনকে স্টাডি করেন তাহলে আপনি অন্তত আপনি 20 জনকে স্টাডি করেন, আপনি দুটো লোকে নিউরো ডিজিজ পাবেনই পাবেন, 2 থেকে 3 জন। সো ইটস কোয়াইট অ্যালার্মিং নাম্বার, এই নাম্বারটা বাড়ছে, আগে এত ছিল না। এই স্ট্রোক কেয়ার ইউনিট বা বিভিন্ন শহরে যে আমাদের নিউরোর চিকিৎসা একটা বেড়ে গেছে, এর একটাই কারণ হচ্ছে যে আমাদের এই নম্বর অফ রোগীরা প্রচুর বাড়ছে। ডায়াবেটিস একটা কারণ, আর স্ট্রেস এই একটা কারণ। বিকজ আমাদের ওইখানে যে ধরনের পেশেন্ট দেখছি, আগে একটা মিথ ছিল যে স্ট্রোক খুব বয়স্ক লোকেদের হয়, কিন্তু এখন সেটা 35 to 40 থেকেও শুরু হচ্ছে। আমি স্ট্রোকের কথা বলছি না, আমি নিউরো ডিজিজের কথা বলছি। কারণ অনেকগুলো উনি বললেন, একটা জেনেটিক কারণ হতে পারে, একটা হচ্ছে যে জেস্টার পশ্চার যেভাবে আমরা লাইফ লিড করছি, ল্যাক অফ এক্সারসাইজ, সেটার স্পাইন এফেক্ট ফেলছে। ফাইনালি আমি মনে করি যে আমরা সবাই যে প্রফেশনে আছি, স্ট্রেস একটা মারাত্মক জিনিস, এটা সবগুলি ডাউন করছে। আরেকটা স্যার আমি আপনার কাছে আসবো, I'll just quote the incidence of stroke. The neuro stroke in India, published in the Indian journals of this neurology and all. The incidence is around 170 people for 1 lakh. quite high. It's very, very high. এবার যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আপনারা যারা চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, চিকিৎসা করছেন, আপনি হোক নিউরোরই হোক, গ্রামাঞ্চলের মানুষ, শহুরের মানুষের কথা বলছি না, গ্রামাঞ্চলের মানুষ, আমি কাউকে অশিক্ষিত বা শিক্ষিত এই কথাটা বলছি না, কিন্তু গ্রামের প্রত্যন্ত গ্রামের একজন চাষি, তারও স্ট্রোক হতে পারে, তারও নিউরো প্রবলেম হতে পারে, কিন্তু তুলনামূলক তাদের সংখ্যাটা হয়তো বা কম, কিন্তু শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে বেশি। মূল কারণটা কি দৈহিক পরিশ্রম? Hard work will not cause stroke. That's a myth. Actually, it's a myth. Again, stroke के लिए बहुत कारण हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि after age of 35, people say at least 45 years, but we say 35 years. Regular physician treatment, evaluation by the physician is must. It is once in a year with blood test,
जो रूटीन टेस्ट वो करना चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना चाहिए. सो बट हार्ड वर्क लोग जो चार्ज करते हैं उसको स्ट्रोक होता है, ऐसा कुछ नहीं. हाँ सर, मैं आई थिंक क्वेश्चन कैन बी नहीं, फ्रेम्ड कब इन क्या दिस होता है वे. उनका फिजिकली ज्यादा एक्टिव लोग कम की होता है. physically active log, those are very physically active, does they more prone towards stroke compared to those are less Sedentary. Ah, See, now that I don't have the data right now. Definitely sedentary lifestyle is not good, sir. yes, That can lead to cardiovascular disease or the neural disease. So পার্সেন্টেজটা কাদের বেশি মেয়েদের স্ট্রোকের সম্ভাবনাটা বেশি না ছেলেদের gender में क्या कोई difference है? नहीं, जेंडर में अभी ऐसा फर्क नहीं है, बट हाँ, we get more in our literature. We have more male incidents because I think they approach the hospital more. They are more prone to all this substance abuse. So and definitely yes, male. According to our literature, male has more incidents of neuro problem. এক্ষেত্রে মানে আপনাদের পরামর্শ কি হবে, অর্থাৎ নিউরো সমস্যাই হোক বা স্ট্রোকের সমস্যাই হোক, হতেই পারে যে কোনো রোগ যার দোষে হতেই পারে, সেটা কোনো বিষয় না, কিন্তু তার আগে প্রিকশন যেটা আপনারা প্রচার করছেন এবং প্রচার করতেই আপনারা বর্তমানে এসেছেন, এমনটাই প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনারা কি ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারেন? ভেরি বিগিনিং, ধরুন আজকে একটা ছাত্রছাত্রী ক্লাস 5, 6, 7, 8 ইত্যাদি তাদের থেকে শুরু হোক, অথবা গ্রামাঞ্চলের মানুষ, বয়স্ক মানুষ হোক, বা তারা কিভাবে মানে এটাকে রোগ করা সম্ভব, এটাকে মানে প্রিকশনটা কি ধরনের নেওয়া উচিত, কি কি খাবার অ্যাভয়েড করা উচিত, বা কি ধরনের তাদের সারাদিনটা কাটানো উচিত, যাতে করে তারা অন্তত এই এফেক্টের মধ্যে পড়বে? I think that has to start from the school. Schools se start the already. Avoid obesity. Avoid junk food. These are and sedentary lifestyle. At least 30 minutes to 1 hour of activities in the playground is very important. All these are vicious cycles. Obesity हो गया, sedentary lifestyle हो गया, खेलकूद करना बंद कर लेते हैं, और आज तो मोबाइल का सब लोग मोबाइल में रहते हैं. So these all contribute to the long-term incidence of higher stroke. So the precautions to start from the school. There must be awareness regarding activities, avoid obesity, kind of food you eat at home. Thereafter, again, 30 minutes of exercise in a day or walking, brisk activity, simple walking, brisk activity is very, very important. একই সঙ্গে দেখুন, মানে আমাদের রাজ্যের কথাই যদি আমি বলি, জেলার কথা তো বলবো, আগে এত হয়তো ছিল না, আগে দেখা যেত যে পাড়াতে হয়তো একটা কোনো ব্যায়ামাগার ছিল, এখন কিন্তু বলা যায় প্রায় অধিকাংশ বাড়িতেই একটা করে ওইরকম ছোট ছোট সংস্করণ, আধুনিক সংস্করণের ব্যায়ামাগার তৈরি হয়ে গেছে, তারা সেখানে করছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও রোগের পরিমাণও একই সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে। মূল কারণটা কি? ঠিক মতো হচ্ছে না, কোথায় আটকাচ্ছে কোথায়? I mean, so the point is that अभी तो इतने सारे जिम हो गए हैं फिर भी, but the fact is stress we didn't. But again, आप सुनते तो suddenly जिम में लोग कोलैप्स होके मर गए, आजकल बहुत कॉमन हो गया. Again, there is no one factor. There is no one factor. Again, what we know is blood pressure, sugar, sedentary lifestyle, stress. These are the most common factors which has to be taken care of. Rest is, I think, it's more of a genetic thing, and जरूरी है फ्री हैंड एक्सरसाइज. yes, at least 30 minutes of brisk activity is very important. লাস্ট কোশ্চেন, যেটা যে জন্য আসা, মানে আপনারা দেখেছেন এখানে যেটা দেখাচ্ছে যে মানে আপনারা প্রচার করছেন, এই প্রচারটা কি করছেন, কিভাবে করবেন, বা কি এটা আপনাদের এটা কর্মসূচিটা কি? আমাদের কর্মসূচি স্ট্রোক সম্বন্ধে অ্যাওয়ারনেস একটা, তার পারপাস আমরা এটা চাইছি যে কলকাতায় যে আমরা স্ট্রোক কেয়ার ইউনিট করেছি তার প্রচারটা হোক এবং সব জায়গায় লোকেরা শিক্ষিত হোক যে তার প্রিভেন্টিভ স্টেপ কী হবে। সেকেন্ডলি, যদি লং টার্মে একটা কথা বলেন, তো আমরা এখান থেকে অনেক পেশেন্ট পাই যারা বর্ধমান থেকে কলকাতায় যায়, ট্রিটমেন্ট করায়, সার্জারি হয়, পরবর্তীকালে একটা ফলো আপও সেখানে করায়। তো আজ না হলো দাঁড়িয়ে হয়তো আমি 3 মাস পরে যখন আবার এখানে ফিরে আসবো, সেখানে আমরা চাইবো অন্তত বর্ধমানের জন্য একটা আমরা ইউনিট বা একটা আমরা ওপিডি সেন্টার করি, অ্যাটলিস্ট যাতে ফলো আপে পেশেন্টগুলোকে আপনার কলকাতা যেতে পারে, তারা যেন এখানে থাকতে পারে। কারণ আমরা চাই না যে একটা লোক 2 বার করে যাক, বিকজ ইটস ভেরি টাইম কনজিউমিং। একটা লোকের এখান থেকে বর্ধমান থেকে কলকাতা যাওয়া, 3 ঘন্টা যাওয়া, 3 ঘন্টা আসা, তার ফলো আপটা এখানে হোক। whenever emergency required, আর যদি বর্ধমানে না হয় ডেফিনেটলি দেবে। আর বর্তমানে কি হচ্ছে দেখুন, হোপফুলি এই মুহূর্তে আমি আপনাকে ডেডলাইন দেবো না, তবে আমাদের ফিউচার রয়েছে যে নেক্সট ইয়ারে আমরা এখানে একটা কোনো জিনিস করি, তাহলে অন্তত এইটা আমাদের একটু আটকাতে পারবো। আর একটা জিনিস আমি বলবো, যে জিনিসটা নিয়ে স্যার এখানে আসা, যে ব্রেন টিউমার সম্বন্ধে আপনারা অনেক কিছু শোনেন। ব্রেন টিউমার এবং তার দুটো অ্যাঙ্গেল আপনারা অনেক শুনে থাকেন, ক্লিপিং এবং কয়েলিং।
যে ভদ্রলোক আজকের মধ্যে কিন্তু আসতে পারেননি, ইজ দ্য মেইন পার্সন ক্লিপিং, বাট স্যার রয়েছেন এখানে অ্যান্ড্রু স্যার। এই দুটো ব্যাপার নিয়ে আপনারা একটু জেনে যান, শুনে যান। স্যার ব্রেন টিউমার, হোয়াট ইজ ইজ রোল, আর আমরা কিভাবে ট্রিট করতে পারি, হাউ ডু উই অপারেট? Again, see, brain tumor तो zero oncology, it's a vast subject. एक चीज मैं कॉमन पीपल को बोलना चाहता हूँ कि ब्रेन ट्यूमर इज ऑलवेज नॉट बैड। दो टाइप का ट्यूमर होता है ब्रेन में, एक बिनाइन बोलते हैं, एक मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट माने कैंसर, बिनाइन माने क्यूरेबल। ओके, क्यूरेबल में बहुत सारे ट्यूमर हैं, अराउंड 80% ऑफ ट्यूमर आर बिनाइन, जो ऑपरेशन करने के बाद क्योर हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। और मैलिग्नेंट माने कैंसर जिसका लॉन्जिविटी आयु डिपेंड करता है कि पैथोलॉजी में क्या बॉडी में ग्रेड। देखिए डेफिनेटली इसका लक्षण भी हो सकता है स्ट्रोक जैसा ही, स्पेशली हेडेक से लेके विजन प्रॉब्लम से लेके मिर्गी से लेके पृथ्वी से लेके या पैरालाइसिस, सब लक्षण ऑलमोस्ट सिमिलर, बट दे आर लिटिल स्लोली प्रेजेंटिंग। The tumors present slowly over a period of months or years, whereas stroke comes in the flash of a second. Iska treatment is very vast, but again I can assure the public that most of the brain tumors are curable. The cure की बात कर रहे हैं. Do not be scared of brain tumor. और ऐसा नहीं कि सभी केसेस में आजकल ऑपरेशन ही करना पड़ता है। कोई डिस्क्रीट केसेस में हम लोग आजकल फोकस्ड रेडिएशन जैसे गामा नाइट थेरेपी से भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, so that will depend on the imaging finding and presentation of patient. सर एनुरिज्म में कुछ पता सुना जाए, एनुरिज्म देखिए एनुरिज्म जो आप बात कर रहे हैं क्लिपिंग और कॉइलिंग, एनुरिज्म मतलब ब्लड वेसल्स का बीमारी, एक ब्लड वेसल्स है वो ऊपर जाके बलून टाइप का फूल जाता है। जो वॉल होता है 3 लेयर्स ऑफ वॉल होता है एक आर्टरी का, वो किसी कारण से कमजोर हो जाता है और वो बलून टाइप का फूल जाता है। और जस्ट इमेजिन यहाँ पे थोड़ा कसने से कितना ब्लीडिंग होता है, वो ब्रेन के अंदर एक बार थोड़ा सा भी फट गया तो कितना ब्रेन में ब्लीडिंग होता है, तो हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है। एंड अगेन दीज आर इसका जो ट्रीटमेंट है डिपेंड्स ऑन द इनिशियल प्रेजेंटेशन, मतलब इसका भी ग्रेडिंग होता है। एंड 10% ऑफ पीपल डाई एट द स्पॉट बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल। ये एनुरिज्म बहुत खतरनाक डिजीज है। Around 50% patients can be cured, and 30-40% patients with treatment they live with some morbidity. So paralysis या फिर कोई मतलब neurological deficit के साथ रह सकते हैं, but 50% can be cured, 10% die at the spot or before reaching the hospital. इसका दो टाइप का ट्रीटमेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंटेशन। या तो हम लोग छोटा माइक्रो सर्जरी करके क्लिपिंग कर देते हैं ताकि उसको वो फिर से ब्लीडिंग ना हो, या तो आजकल का इफ द टाइम परमिट्स एंड इफ द एनाटॉमी परमिट्स, सभी में कॉइलिंग नहीं करते, उसमें जैसे एंजियोग्राम हार्ट का एंजियोप्लास्टी करते हैं वैसे ही हम लोग कैथेटर लगा के वहाँ पे कॉइलिंग कर सकते हैं विदाउट ऑपरेशन। अगेन दीज आर डन इन हायर सेंटर्स, सो दैट्स व्हाई लाइक एनी न्यूरो प्रॉब्लम आप डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप तो लेंगे, एंड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्राइमरी ट्रीटिंग डॉक्टर प्लीज गो टू अ higher neuro center. Manipal, when are you planning to do something for the people who are really financially? See, that's why we are discussing. This is a continuous evolution. We are discussing the management that patients and family should be treated very individually. All patients don't have that capacity. What you say? Unfortunately, we don't have those kind of insurance policy in India as of yet. That's why government has many social schemes, and still it's not. I try to tell them to please help with the costings. I do my best for the benefit of the patient, because for us, first to treat the pathology is more important than any monetary gains. So regarding the premium hospitals, high-end hospitals do have the running cost, they will charge extra. But I think if you talk to the doctor, the physician, the surgeon, and the management, we can always help. অলওয়েজ একটা রাস্তা খোলা থাকে, অসুবিধা থাকে না। কারণ আলটিমেটলি আমরা দেখতে পাই যে অন্তত বর্ধমান জেলা থেকে কিছু না হলেও প্রত্যেক মাসে 500 পেশেন্ট হয়তো সাউথ ইন্ডিয়াকে ট্রিটমেন্ট করাচ্ছে, সেটা আরো বেশি কস্টলি কম্পেয়ার টু কলকাতা থেকে হসপিটাল। তো সেই দিক থেকে ড্রেনেজটাকে যদি আমরা এখানে আটকাতে পারি, And most of the things that we are trying to bring into package. Suppose you do a spine surgery, and we give you a package. We try to limit ourselves within the package and not let the cost escalate. That's very important. And that assurance can be only after one-to-one meeting, knowing the pathology कि ये treatable है, नहीं treatable है. So that's how we can help.
blanketly we cannot say it's very costly. We can ফিনান্স figure it নিয়ে out. খুব একটা বেশি কারোর অসুবিধা এখন অব্দি টু বি ভেরি অনেস্ট আমি প্রেস সামনে বলতে আমাদের মানিপাল কারো হয়নি কিন্তু দেখো যারা বিভিন্ন সরকারি স্কিম নিয়ে আসেন এমার্জেন্সি বেসিসে যেটাই এলে সেটা হসপিটালের পলিসি অনুযায়ী তাকে ট্রিট করাটা আমাদের মধ্যেই পড়ে কিন্তু সেটা মেডিকেল সেটা মুকুন্দপুর বলে নয় ইচ এন্ড এভরি হসপিটাল কলকাতা এমার্জেন্সিকে অলওয়েজ ট্রিট করে Ask you, why are you not planning to set up branch in টু বি ভেরি অনেস্ট হয়তো এই প্ল্যানটা এখন নেই নিশ্চয়ই ফিউচার হতে পারে আমি এখন কিছু বলবো না যেটা পরে কমিট করতে পারবো বাট হয়তো ফিউচার হতে পারে